So what is chapter's name? सेकेंड चैप्टर का नाम चैप्टर 2 का नाम है कॉर्पोरेट एंटिटीज. एज पर द ओल्ड सिलेबस इस चैप्टर का जो वेटेज है इट इज अराउंड 7 to 8 marks. This is one of the very important chapters. सबको वेटेज समझा कितना है? अगेन अ डिस्क्लेमर, दिस इज फॉर ओल्ड सिलेबस हिसाब से. न्यू सिलेबस का फर्स्ट अटेम्प्ट कभी होने वाला है? दिसंबर में. सो हमें तभी पता चलेगा. Everyone understood this? But as per old syllabus, this chapter was very important because इस chapter से कभी भी direct questions नहीं आए. इस chapter से आते हैं twisted questions जिसे हम कहते हैं case studies. Okay, so we are going to learn over here how to write the case study as well. Case study writing हम class में ही करेंगे. So please make sure next lecture से आप book लेके आओ अपना केस स्टडीज का. सबको समझा इतना? बिकॉज सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है राइटिंग का. राइटिंग प्रैक्टिस इज नॉट देयर. दे नो द कॉन्सेप्ट, दे नो एवरीथिंग, बट दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट द आंसर्स. सो हाउ टू ओवरकम दिस? यू हैव टू हैव अ राइटिंग प्रैक्टिस. एटलीस्ट मेक श्योर हर एक सब्जेक्ट का रोज एक एक आंसर लिखो. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? सबको समझ आ गया? ओके. सो नाउ corporate entities में let's go to the basic which you have learned in your EET also. The word company ये हमें derive हुआ है from Latin word cum and panis. कम का मतलब होता है कंपनीज, का मतलब होता है हैविंग मील्स टुगेदर. मोहनजीदारो मूवी देखी है सबने? बाहुबली देखी है? उसमें यू माइट हैव सीन दैट द मार्केट प्लेस इज फार अवे फ्रॉम द रेसिडेंस. जहाँ पे लोग बिजनेस करते हैं वहाँ पे फैमिलीज नहीं होती है. And families नहीं होती है. After the business hours is done, they make group and have their meals together. So when they have their meals together, पहले लोग अकेले business करते थे. After that, they starting discussing business during the meals. There came the concept of a companies. I hope all of you understood this. सबको समझ आ गया? So they started forming groups and doing business. Now the next concept we are going to learn is the first concept understood to all of you. ओके. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं एज फार एज वेदर कंपनी इज सिटीजन और नॉट. सिटीजनशिप पढ़ना है. जिन्होंने ईटी में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है दे नो दिस कॉन्सेप्ट. Whether company has nationality or not, whether company has domicile or not, and last one whether company has residence or not. ठीक है, तो ये चार कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाला है. क्या कंपनी सिटीजन है, नेशनैलिटी, डोमिसाइल एंड रेसिडेंस. नाउ सिटीजनशिप है कि नहीं है, कैसे डिराइव होता है ये? इट इज विद द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता है, इंडिया का चार्टर है. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन रेड विथ एन एक्ट विच इज कॉल्ड एज सिटीजनशिप एक्ट 1955. ठीक है. लैंग्वेज ना तुम्हारी इतनी अच्छी है जिसका कोई हिसाब नहीं है. प्लीज वर्क ऑन द लैंग्वेज.
ठीक है, फाइन. सो सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कहता है? What does Citizenship Act 1955 say? That if you are a natural person, then only you can be a citizen. What is a natural person? Human beings. Everyone understood this? So what does Citizenship Act say? Only natural persons can be citizen. So therefore we infer that company is not a citizen. Everyone understood this? Any doubts till here? Whether company has nationality? Company has nationality because we call it as Indian company, foreign companies, etc. So it has a nationality. Whether it has a domicile? What is actual meaning of a domicile? The origin. लोग पूछते हैं ना कौन से गांव से हो? Okay, so that is origin. So what will be the origin of a company? Origin of a company is a state in which registered office of company is situated. I hope everyone understood this. Does company have residence? Company does have residence. So what is a residence? The district or city in which registered office is situated. I hope all of you understood this. समझ में आया? तो company is not a citizen. Company has a domicile. What is a domicile? State. What is a residence? District. And whether it has a nationality? Yes. Is this second concept understood to all of you? सबको समझा? Now let's go to the next one. Now we are going to learn the first section of your Companies Act, that is section number 3. Okay, before going to section 3, let's go to the basic. Company is defined under which section? Section 2, subsection 20. What is the definition of company? Wait. 1, 2, 3, start. मुझे लगा बहुत अच्छे से बोलोगे. Company means a company retake. 1, 2, 3, start. Company means a company incorporated under Companies Act 2013 or any other previous company law. ओके, रिसेंटली एक स्टूडेंट गया था इंटरव्यू देने एक बैंक में. ठीक है, जैसे ही आप फर्स्ट अटेम्प्ट देते हो ना प्रोफेशनल का, फिर वेर एवर वी हैव कॉन्टैक्ट्स वी सेंड देम. तो वहाँ पे उसको बेसिक डेफिनेशन पूछा कंपनी का, नहीं आया. प्रॉब्लम इज जैसे हम प्रोफेशनल में जाते हैं, सेबी LODR पूरा आता है लेकिन बेसिक से हट जाता है. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. समझ रहा है सबको? नेवर एवर फॉरगेट योर बेसिक्स, because if you want to get into Fortune 500 companies or banks or NBFCs, it's very much important to have your basics in place. सबको समझा है? उनका एक्सपेक्टेशन क्या होता है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो देंगे, एटलीस्ट आप बुक नॉलेज तो लेके आओ. समझ में आ रहा है सबको? अंडरस्टूड दिस मच? फॉर दिस स्मॉल डेफिनेशन विच दैट चाइल्ड हैज स्टूडेंट हैज लर्न फ्रॉम EET, वही उसको नहीं आया. एंड इन डेफिनेशन दे विल नॉट इवन कॉम्प्रोमाइज ऑन अ सिंगल वर्ड. अगर आप इनकॉर्पोरेटेड के जगह पे कुछ और वर्ड यूज करते हो तो वो नहीं मानेंगे, बिकॉज दिस इज अ डेफिनेशन. वी आर गोइंग टू बी द लॉ प्रोफेशनल्स. कैन वी मेक मिस्टेक्स? मिस्टेक्स इज गोइंग टू, क्या होगा मिस्टेक से? किसको पे करना पड़ेगा? हमारे कंपनी को पे करना पड़ेगा, हमारे क्लाइंट्स को पे करना पड़ेगा. पता है कितना बड़ा नुकसान होता है? लाखों में पेनल्टीज होता है, फाइन्स होता है,
करोड़ों में भी होता है, एंड इवन हमें भी क्या हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट। इसके साथ हमने जो अभी पढ़ा हुआ है सब, वो लाइसेंस क्या हो सकता है, कैंसर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? सो जो भी हम लॉ में पढ़ेंगे, एटलीस्ट हमारा जो बेसिक लॉ है कौन सा है, वो कंपनीज एक्ट है। इट इज अ ब्रेड एंड बटर, सो इट इज एसेंशियल टू लर्न इट प्रॉपरली। समझ आ गया? ओके, सो नाउ आई वांट यू ऑल टू मेक अ लिस्ट ऑफ सेक्शंस, बिकॉज हमें सेक्शंस लर्न करना है। समझ आ गया? सबको अच्छे कंपनी में ट्रेनिंग करना है, स्टार्ट अच्छा है तो आपका करियर बेस्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, सो वहां पे डायरेक्टली क्या पूछता है, व्हाट इज सेक्शन नंबर 188, व्हाट इज सेक्शन 145? सो इवन दो यू नो अ प्रोविजन, यू डोंट रिमेंबर द सेक्शंस, कोई यूज है उसका नहीं। सो आपको क्या लर्न करना है, सेक्शन। एंड दूसरा हम लिस्ट बनाएंगे फॉर्म नंबर्स का, तो सेक्शन नंबर्स एंड फॉर्म नंबर्स। कंपनी लॉ एनएसबी आईएलएल का एक ही लिस्ट होगा, जैसे जैसे आप सेक्शन पढ़ते जाओ उसमें एडअप करते जाना। कैरी दैट लिस्ट इन द सेशंस, सो दैट जैसे मैं यहाँ पे नया सेक्शन पढ़ाऊँ आप उसमें अपडेट कर दो। फिर क्या करना है, उस लिस्ट का दिन में 2 बार पढ़ना है। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू रीड, 2 टाइम्स। वी आर नॉट डूइंग बाय हार्टिंग, वी आर डूइंग लर्निंग। समझ में आ गया? एंड दैट 2 टाइम इज आफ्टर यू वेक अप, नॉट बिफोर, एंड बिफोर यू स्लीप। 2 बार पढ़ना है सिर्फ, ओनली 2 टाइम्स। ये कंटिन्यूसली 2 साल करोगे, बिलीव मी यू विल नेवर फॉरगेट दिस। सबको समझ में आ गया? सिंपल है, क्लियर? तो अभी से अच्छे कंपनी में ट्रेनिंग लेने का ट्राई शुरू किया जाए। यस और नो? यू वांट टू डू ट्रेनिंग इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, जेएम फाइनेंशियल्स, एचडीएफसी बैंक? यस, समझा सबको? क्लियर है? ओके, सो पहला सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। आफ्टर दैट नेक्स्ट सेक्शन वी आर गोइंग टू लर्न इज सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 सेज दैट, पहले यहां पे ध्यान दो, कंपनी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एंड ओनली फॉर विच पर्पस, लॉफुल पर्पस। ठीक है, सो कंपनी बन सकता है ओनली एंड ओनली फॉर द लॉफुल पर्पस। सबको समझा इतना? क्लियर है? नाउ दिस हैज 2 सबसेक्शंस। सबसेक्शन 1 सेज दैट company can be formed as a public company with 7 or more persons। तो अगर आपको पब्लिक कंपनी बनाना है तो कितने लोग चाहिए, मिनिमम 7 persons। Further it says that if you want to form a private company then 2 or more persons। So 2 or more persons के लिए कौन सा कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। But when you want to form an OPC with 1 person only, we will not write 1 or more persons over here, right? Q, because minimum maximum is only and only 1. Everyone understood this? समझा? Section 3 subsection 1, what does it say? 7 or more public company, 2 or more private company and 1 person for OPC। क्लियर हो गया? अभी इसका जो सेकेंड सबसेक्शन है, it says that the above companies can be formed either as limited by shares or limited by guarantee, or the third one is unlimited liability company। everyone understood this? एकदम सिंपल सेक्शन है ये। कौन सा है ये, सेक्शन 3। Section 3 says that we can form company only for lawful purpose, as a public with 7 people, private with 2 people and OPC with single person, as a limited by shares, limited by guarantee और unlimited liability। याद हो गया? सबको समझा इतना? Okay. Now the next thing we are going to learn is classification of companies। ये सब आपका EET का रिविजन हो रहा है। Everyone agrees? Now classification of companies, we can classify companies into 4 main categories। 4 तरह के कंपनीज है, इधर ध्यान दो। फर्स्ट वन,
on the basis of incorporation, still I can hear some noise. Secondly, on the basis of liability. तीसरा, कंपनीज एक्ट के अंडर कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ कंपनीज है, पता है कौन से है? हाउ मेनी बेसिक काइंड्स ऑफ कंपनीज आर देयर? ओनली 3 काइंड्स, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी. क्लियर है? सबको समझा? कभी कभी प्रोफेशनल के स्टूडेंट को भी नहीं पता हाउ मेनी बेसिक टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर. प्लीज डोंट फॉरगेट दैट. ओनली 3 टाइप्स, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड ओपीसी. सबको समझा है? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन वी हैव 3 काइंड्स ऑफ कंपनी. पहला कंपनी है चार्टर्ड कंपनी, दूसरा कंपनी है रजिस्टर्ड कंपनी एंड तीसरा कंपनी जो है स्टैट्यूटरी कंपनी. ये सब आपने पढ़ा था ईटी पे. लायबिलिटी के हिसाब से फर्स्ट वन वी हैव लिमिटेड बाय शेयर्स, सेकेंड वन इज लिमिटेड बाय गारंटी and the third one is unlimited liability company. Basic just now we discussed, public company, private company and OPC. Other companies कौन से है? Section 8 company, foreign company, निधि company, NBFC, dormant company, government company, producer company. On the basis of relation, holding, subsidiary and associate. Everyone understood the entire list? सबको समझा? ये पूरा क्लासिफिकेशन हम वापस डिटेल में पढ़ेंगे. क्लियर है? अंडरस्टूड? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. देखो ये जो नोट्स है, this all are going to be last minute revision notes. I hope you are understanding this because ये conceptual based है. Day before your exam we don't have time to open our entire books and study. टाइम बहुत कम होता है, तो हम वहाँ पे कौन से नोट से पढ़ेंगे? दिस हैंड रिटन नोट्स. दैट्स व्हाई आई टेल यू दैट घर जाके इसे आप अपने हाथ से लिखो. डोंट यू थिंक दिस विल बी मोर इफेक्टिव? बिकॉज दिस आई हैव रिटन, यहाँ पे मैंने अपना दिमाग यूटिलाइज किया है. आप अपने दिमाग से आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं वो इसमें डाल दोगे. yes or no? clear with this? understood? okay, so on the basis of incorporation let's learn the first type. Try to concentrate over here 100%. अगर आप 100% कॉन्सेंट्रेट करोगे यहाँ पे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, आपका फर्स्ट रीडिंग बहुत सिंपल होगा. फर्स्ट रीडिंग सिंपल है तो बाकी सारे रीडिंग्स भी सिंपल हो जाएंगे. क्लियर विद दिस? अंडरस्टूड? ओके, सो लेट्स ट्राई टू बी concentrating for entire 2 hours. I know it is little difficult, but that's not impossible. समझ आ गया? Clear with this? Understood? तुम्हारा फोकस फिलहाल ओनली CS. मैंने आपको कहा है डोंट फॉरगेट दैट. CS कर लोगे 2 साल में, 21 ईयर्स पे कंपनी सेक्रेटरीज बनना अपने आप में अचीवमेंट होता है. सम पीपल बिकम CS इवन बिफोर द ग्रेजुएशन, मतलब रिजल्ट बाद में आता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट बिकॉज फॉर गिविंग फाइनल्स यू रिक्वायर दैट हॉल टिकट. दैट्स इट, दैट यू गेट इट. समझ में आया? डोंट यू थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट टू बिकम CS सो अर्ली? यस और नो? यस. तो अभी आपके जो फ्रेंड्स हैं जो बहुत मज़े करेंगे कॉलेज में एंड आपको उल्टी सीधी बातें पढ़ाएंगे, तू अपने गोल्डन ईयर्स वेस्ट कर रहे हो. ऑल दिस थिंग्स आर सेड,
है ना, तब हमें लगेंगे अरे रे क्या कर लिया. बट when you become a CS, okay, when you become a CS, उनके लाइफस्टाइल में तुम्हारे लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क होने वाला है. एग्जाम्पल दू, प्रॉमिस करो चिल्लाओगे नहीं और ज्यादा इमेजिनेशन में खो नहीं जाओगे. बी हियर इन द क्लास. ठीक है. Whenever they will think of vacations, they will think of Mathiran, you will think of Maldives. That's a difference. देखो होगा ऐसे, बिलीव करते हो तब तुम उन्हें बोलना, बोला था ना पढ़ाई कर. फिर आफ्टर दैट when you think of a car, for them essential WagonR, for them, and तुम लग्जरी वाला लोगे हेक्टर. टेस्ला पे मत जाओ, अभी तक आया नहीं है इंडिया में, रुक जाओ. टेस्ला इज नॉट फॉर इंडियन रोड्स. आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल. लेट्स सी. ठीक है. फिर घर अच्छे लोकेलिटी में दे कैन अफोर्ड 1 RK 1 रूम किचन, बिकॉज वो भी आता है 70-80 lakhs का, सबको पता है. And at the age of 30-32, you can easily book a 2 BHK. बस कौन है ये बस? बेटा वो पता है कितने का आएगा? 2.5 करोड़ मिनिमम. बस. ओके. So let's go to the basis of incorporation now. The very first type of company under this, कौन सा कंपनी है ये? चार्टर्ड कंपनी है. ख्यालों से बाहर आ जाओ, हम अभी एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, दिल्ली अभी दूर है. चार्टर्ड कंपनी का मतलब होता है एक ऐसा कंपनी जो ब्रिटिश रूल में बना करता था, बिकॉज ब्रिटिश रूल हैज अ मोनार्की. मोनार्की रूल है ना उधर, किंग और अ क्वीन. इन इंडिया इट इज अ डेमोक्रेसी, एवरीवन नोज दैट. सो मोनार्की रूल में व्हेन एनी पर्सन वांट्स टू इनकॉर्पोरेट कंपनी, द किंग और क्वीन विल बी इशूइंग अ चार्टर फॉर दैट. इसलिए कंपनी को क्या कहा गया? चार्टर्ड कंपनी. ओके. सो चार्टर्ड कंपनी इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर चार्टर by queen or a king. But do you think these companies are any longer in existence in India? It's not there. सबको समझ आ गया? After that, next type of company कौन सा है? We have a registered company. Just now we saw the definition of registered company. Registered company means company which is defined under section 2 subsection 20. That means any company incorporated under Companies Act or any other previous company law will be called as a registered company. सबको समझा इतना? Third type of company is which company? Statutory company. Statutory company क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी है. Yes, so statutory company is a company which is registered under its special law. So parliament ये टाइप के कंपनी के लिए क्या बनाता है? लॉ बनाता है. जैसे कि सेबी है, सेबी एक्ट 1992 में रजिस्टर्ड है. LIC, ICSI, RBI, IRDA, SBI
ऑल ऑफ दिस आर विच कंपनी? स्टैट्यूटरी कंपनीज. अभी ये सब आपने ईटी में पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है. What you have to remember over here is this company is an autonomous body. You understand what is meaning of autonomous? क्या होता है? Yes, so it's an autonomous body. That means when we talk about RBI, RBI is governed under RBI Act 1934. सबको पता है. अभी RBI को चलाने वाले उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है. अभी ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कौन है? दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज. एवरीवन नोज दैट. समझ रहे हो क्या बोल रहा है? आपका जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होता है वो प्राइवेट सेक्टर से बहुत ज़्यादा पीछे चलता है. व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट? बिकॉज पब्लिक सेक्टर आर गवर्नड, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. अगर उन्हें कोई भी चेंजेस करना है, इट हैज़ टू बी पुट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल लगता है. उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर आगे निकल जाता है एंड पब्लिक सेक्टर पीछे रह जाता है. नाउ गवर्नमेंट फील्स दैट देयर इज अ नीड टू ब्रीच दिस गैप. तो उसने कौन सा बॉडी बनाया? स्टैट्यूटरी कंपनी बनाया. स्टैट्यूटरी कंपनी को कहा गया इट विल बी अ ऑटोनॉमस बॉडी. It will be not be under control of a government but managed by a representative of government. There is a difference. जैसे RBI में जो representatives है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही है. So when you want to change any laws or when you want to take any decision for RBI, do they have to place before parliament? पार्लियामेंट के आगे प्लेस करना पड़ता है. तो क्या करना पड़ता है? दे जस्ट हैव टू कॉल द बोर्ड मीटिंग एंड पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस डिफरेंस. समझ आ गया क्यों उसे ऑटोनॉमस बॉडी कहा जाता है? वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, पर मैनेज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट. कैसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? गवर्नमेंट इटसेल्फ. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. क्लियर है? तो स्टैट्यूटरी कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट and it is also a autonomous body. क्लियर हो गया? समझा सबको यहाँ तक? ओके. इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं. स्टैट्यूटरी कंपनीज के एग्जाम्पल्स क्या है? एज वी डिस्कस्ड RBI, SEBI, IRDA, ICSI, CCI, ICAI, बहुत सारे लंबा लिस्ट है. एनी डाउट्स टिल हियर? समझा सबको? लेट्स गो टू द नेक्स्ट टाइप. दूसरा टाइप कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. व्हाट इज द फर्स्ट वन इन दिस? लिमिटेड बाय शेयर्स. व्हेन वी हियर द वर्ड लिमिटेड बाय शेयर्स, हमें क्या ध्यान में आता है? द कंपनी विल बी हैविंग शेयर कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. एंड मेंबर्स का जो लायबिलिटी है वो क्या है? लिमिटेड है. इट इज लिमिटेड टू व्हाट एक्सटेंट? सो मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू अनपेड value of shares if any. Everyone understood? A simple example, if I own Tata Motors के shares, मैंने 500 shares खरीदे and आज का price per share is 500, say for example, what is my liability? 2,50,000. Everyone understood this? If I have paid entire 2,50,000, can any of the director come to me and ask for any extra amount in the case of winding up? No. अगर deficiency है तो भी पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते, because मैंने अपना liability limit करके रखा है. What is that limit? The amount subscribed. and उसमें कुछ unpaid है तो ही मांग सकते हैं, वरना मांग नहीं सकते. Everyone understood this? सबको समझ आ गया?
Which is the next type? Limited by guarantee. Limited by guarantee आपने EET में पढ़ा था, याद है किसी को? If any person wants to become member of this company, क्या बनना है इसे? Member. कैसे बनेगा इस कंपनी का मेंबर? किसी को पता है? शेयर्स तो है नहीं. वेरी गुड. ये मेंबर को हर एक कंपनी का चार्टर होता है. वन ऑफ द चार्टर इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सो दिस पर्सन over here has to give something called as guarantee. Okay, क्या guarantee देना है? Guarantee देना है that जब भी winding up होगा, at the event of winding up, I shall contribute sum of rupees dash. Suppose इसने liability लिया है 5 लाख रुपए का, तो जब भी कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगा तो कितना अमाउंट पे करना है? 5 लाख रुपीस पे करना है. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? सबको समझ आ गया? अभी सपोज ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप, जब भी कंपनी वाइंडिंग अप हो रहा था, वहां पे डेफिशिएंसी क्रिएट हुआ 7 लाख रुपए का. कैन दिस मेंबर बी फोर्स टू पे 7 लाख रुपीस? व्हाई? बिकॉज उसने अपना लायबिलिटी क्या किया है? It's a limited liability company. Limited to what extent? Amount of guarantee. Everyone understood this concept? अभी ET में पढ़ा था that guarantee company में share capital नहीं होता है. But remember, guarantee company are of two types. One with share capital and second one is without share capital. सबको समझ आ गया? तो गारंटी कंपनी में भी क्या हो सकता है? शेयर कैपिटल होता है. तो जहां पे भी शेयर कैपिटल होता है, इसका मेमोरेंडम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. एक शेयर कैपिटल वाला, दूसरा गारंटी वाला. तो शेयर कैपिटल का जो पैसा होता है वो हमें इमीडिएटली पे करना होता है, बिकॉज शेयर्स हैज टू बी सब्सक्राइब्ड एंड पेड इमीडिएटली. गारंटी अमाउंट विल बी डिलेड टू द वाइंडिंग अप. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस. सबको समझ आ गया गारंटी का? पक्का? ओके. नाउ थर्ड वन. थर्ड कौन सा है? अनलिमिटेड लायबिलिटी. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज ज़्यूरॉन अनलिमिटेड. देखो, जब भी कंपनी अनलिमिटेड है तो सफिक्स क्या यूज करेंगे? अनलिमिटेड यूज होगा. ठीक है. ज़्यूरॉन अनलिमिटेड हैज 4 शेयर होल्डर्स, मिस्टर ए, बी, सी एंड डी. ईच ऑफ देम होल्डिंग 25% स्टेक इन द कंपनी. ठीक है. एक बात याद रखना, ये कंपनी भी विथ शेयर कैपिटल हो सकता है एंड विदाउट शेयर कैपिटल हो सकता है. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? क्लियर? अभी जब भी ये कंपनी वाइंडिंग अप पे गया, व्हेन कंपनी वेंट फॉर वाइंडिंग अप, देयर केम द डेफिशिएंसी ऑफ 1 करोड़. कितना डेफिशिएंसी था? 1 करोड़. नाउ डेफिशिएंसी का मतलब समझते हो? सारे असेट्स बेच दिए, अभी भी कुछ क्रेडिटर्स खड़े हैं. कितने के क्रेडिटर्स खड़े हैं? 1 करोड़ के क्रेडिटर्स खड़े हैं. ठीक है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क इज, कैन क्रेडिटर्स directly claim money from the shareholders or members? क्वेश्चन समझा? सपोज इनका जो क्रेडिटर है वो मिस्टर बाबूराव है. कौन है क्रेडिटर? बाबूराव. बाबूराव एक को रास्ते में मिलता है, कहता है मेरे पैसे दे. कर सकता है ऐसा? क्यों? बिकॉज
Members are not liable for liabilities of company. Why? Company has a separate legal entity. तो लोन किसने लिया था? कंपनी ने लिया था. एंड कंपनी अलग होता है, मेंबर्स अलग होता है. सो अरेंजमेंट यहाँ पे कैसा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर क्या है? आंसर इज नो. So what has to be the arrangement? If creditor wants money, creditor will have to approach the company. Company will approach members. Members will pay money to company and then company will pay money to creditors. I hope everyone understood. It should go from the bank account of the company only. Clear हो गया सबको? पहला question समझा? Okay. Now the second question is, can company ask any member to pay entire liability? Like in our 4 members are there, company is asking Mr. A, आप ही पूरा 1 करोड़ भर दो. कर सकते हैं ऐसा? Why? उनका liability तो unlimited है. Yes. So everyone thinks the same answer. So over here the answer is no. Why? Even though the liability is unlimited, but it is limited to extent of their stake in the company. I hope all of you understood this. So what is the rule over here? Even though liability is unlimited, क्या हुआ इसको? It is limited to extent of their stake. सबको समझा है? इस पे आते हैं केस लॉस. क्लियर हो गया सबको? अंडरस्टूड? पूरा अनलिमिटेड लायबिलिटी समझा है? कोई डाउट्स है अनलिमिटेड लायबिलिटी में? अनलिमिटेड लायबिलिटी भी विद शेयर कैपिटल हो सकता है एंड विदाउट शेयर कैपिटल हो सकता है. अंडरस्टूड ऑल 3? बताओ यहाँ तक कोई डाउट्स है? पक्का? तुम्हें पूरा हक है डाउट्स पूछने का. या हाँ, member and shareholder, they are the owners only. हाँ, they will agree. Understood? Yeah. Why will someone incorporate company without a share capital? Mostly the guarantee companies are your Section 8 companies whose main intention is not to do business. Good question. Now let's go to the third type of company. कौन से है? Basic types. कितने थे basic types of companies? कौन से थे? उसमें सबसे पहला कंपनी है, we are going to learn as a private company first. Private company is defined under section 2 subsection 68. This is the next section number we are learning. ठीक है? section 2 subsection 68. Everyone understood this? सबको समझा है? Okay. Now what is a private company? Anyone knows what is the test of a private company? ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? Test of a private company lies in its articles of association. कहाँ पे लिखे रहता है? Articles of association में लिखा है. Now what is written in articles? In order to become a private company, you have to fulfill these 3 conditions. The first condition talks about the prohibition. Next condition talks about the restriction. And third one is also an restriction. First prohibition says that a private company cannot go for public issue. Everyone knows the meaning of public issue.
IPO एंड FPO एक प्राइवेट कंपनी ला नहीं सकता। सबको समझा? इतना क्लियर है? तो वो शेयर्स कैसे देते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट से देते हैं। आपका शेयर कैपिटल हो चुका है? हो गया है? नहीं हुआ। ओके, सो प्राइवेट कंपनी कैन नॉट गो फॉर पब्लिक इशू। सबको पहला प्रोविजन समझा? आफ्टर दैट नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन टॉक्स अबाउट on transfer of shares. So I can infer that shares of private company are not freely transferable. What is meaning of this restriction? Suppose हमारा कंपनी है CS एग्जीक्यूटिव मुलुंड प्राइवेट लिमिटेड। हमारा काम है लोगों को घुमाना, मतलब टूर्स एंड ट्रैवल्स। उसमें घुमाते ही है हम लोग। ओके, एंड हमारे जो and you all are the members of this company. Now suppose Deepak wants to sell his stake. दीपक का स्टेक है 10%। कहाँ गया दीपक? हाँ, दीपक को अपना स्टेक बेचना है, 10% होल्ड कर रहा है। यहाँ पे सुनो, how much he is holding? 10%. He wants to sell his stake. Can he do so freely without any restrictions? So what is that restriction? They have to ask for permission. Then what's the difference between private company and partnership? What is the privilege of incorporating a private company? अगर हमें कंसेंट ही लेना है तो पार्टनरशिप बना लेते हैं, सीक्रेसी रहता है। और कुछ? व्हाट इज दैट रेस्ट्रिक्शन? रेस्ट्रिक्शन का मतलब है पहला ऑफर उन्हें देना है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। What is the meaning of restriction? First offer has to be given to the existing shareholders, and if they don't take up the shares, it can be easily transferred to the public. I hope all of you understood this. समझा है? तो restriction का मतलब क्या है? First offer to existing shareholders. समझ में आ गया सबको? Next restriction talks about number of members. Everyone knows that number of members in a private company cannot exceed 200. Okay? अभी इस पे आता है केस स्टडी, इसके काउंटिंग के रूल पे। Now for counting this 200, following rules are applicable. ठीक है? सबसे पहला रूल क्या कहता है? दैट फॉर काउंटिंग 200 एम्प्लॉइज एंड एक्स एम्प्लॉइज शैल बी एक्सक्लूडेड। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अब मुझे बताओ, एम्प्लॉइज एंड एक्स एम्प्लॉइज के पास शेयर्स रहेंगे? अगर कंपनी ESOP इशू करता है, ओके, ESOP इशू कर रहा है तो सारे एम्प्लॉइज को देना पड़ेगा। एंड इफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर 500, तो आपका 200 का लिमिट तो कब का क्रॉस हो गया? दैट्स व्हाई वी हैव टू डिसरिगार्ड द एम्प्लॉइज। ठीक है? व्हाट अबाउट द एक्स एम्प्लॉइज? एक्स एम्प्लॉइज का मतलब क्या है? जब भी उसे शेयर मिले वो एम्प्लॉय था, तो जब भी वो एम्प्लॉय था उसको काउंट नहीं किया, उसके बाद उसने रेजिग्नेशन दिया, रेजिग्नेशन देने के बाद वो बन गया एक्स एम्प्लॉय। तो व्हेन ही वाज एम्प्लॉय वी डिड नॉट काउंट, वी विल नॉट काउंट हिम also after becoming an ex-employee. Everyone understood, or should I give example of this? There is Mr. Mohan. Mohan, employee of Zyka Private Limited. अभी Zyka Private Limited ने ESOP इशू किया है। ठीक है? अभी ESOP इशू किया है, मोहन इज एन एम्प्लॉई, उसने ESOP को सब्सक्राइब किया। अभी सब्सक्राइब किया ESOP को, द पर्सन बिकेम मेंबर ऑफ दिस कंपनी, इज ही काउंटेड फॉर 200 because he is an employee. I hope all of you understood. After that,
मोहन गेव रेजिग्नेशन। अगर मोहन ने रेजिग्नेशन दिया, अब वो क्या बन गया? एक्स एम्प्लॉई, बट ही स्टिल होल्डिंग अ शेयर. So when ex-employee is still holding shares, will he be counted? He will still be not counted. सबको समझा ये? क्लियर हो गया? पक्का? एवरीवन यहाँ पे कोई डाउट्स है? यहाँ पे पूरा समझ आ गया? तो एम्प्लॉयज एंड एक्स एम्प्लॉयज को हम 200 में काउंट नहीं कर सकते. क्लियर हो गया है? ओके, ये कौन सा रूल? फर्स्ट रूल था. नाउ द सेकेंड रूल. Second rule says that, have you heard of joint owners? Joint owners मतलब कौन होते हैं? बताओ बताओ. Joint owners कौन होते हैं? Single share is held by 2 persons. Can you see some deficiency in expressing the answers? Yes or no? Don't take this lightly. This is going to affect your answer sheet. You know the concept, लेकिन आप उसे इंग्लिश में बोल नहीं पा रहे हो, वैसे ही लिख भी नहीं पाओगे. So you have to work on writing. सबको समझा है? क्लियर है? ओके, सो जॉइंट ओनर्स मतलब कौन होता है? सिंगल शेयर हेल्ड बाय 2 persons इज कॉल्ड एज जॉइंट ओनर्स. सो जॉइंट ओनर्स आर ऑलवेज काउंटेड एज 1. सबको समझा? क्लियर हो गया? ये लॉजिक समझा? एक शेयर 2 लोग होल्ड कर रहे हैं, लेकिन हम उसे 1 2 काउंट नहीं करेंगे. कैसे काउंट करेंगे? 1. इनको क्या हो गया? नॉट वेल. गुड मॉर्निंग. उठ जाओ, रात को जल्दी सोया करो, मॉर्निंग लेक्चर्स में फिर अफेक्ट ना हो. मुझे पता है तुम लोग बहुत पढ़ाई करते हो. जब भी मॉर्निंग लेक्चर्स होता है थोड़ा पढ़ाई कम करो रात में. Are both the rules understood? पक्का? Sure? Can we solve a case law on this? सबके पास राइटिंग बुक है? निकालो. अगर नहीं है, आजू बाजू वालों से एक पेज बोरो कर लो. इतना तो आपका क्रेडिबिलिटी है कि दे देंगे पेज. पैसा नहीं मांग रहे, क्या मांग रहे? पेज. बातें करने को नहीं बोला है, सिर्फ बुक ओपन करो. अपना बुक नहीं है तो बाजू वाले से एक पेज ले लो. Start writing. क्या मजा चल रहा है उधर?
इसका आंसर जो है मुझे उसी वहां से मिलेगा, कोई और एक जन मुझे वहां से आंसर देगा। सबका लिख के हो गया? इज इट रीडेबल? जो समझ में ना आए वो पूछ लेना। क्वेश्चन राइटिंग डन? Done question writing?
It's valid. Okay, सबका क्वेश्चन लिख के हो गया? Done. Okay, now pay attention. Everyone knows how to write a case law. देखो, writing a case law you learn in your Companies Act lectures, then your SEBI lectures, also over here. All the ways are correct. Okay? आपको जो सबसे ज्यादा suitable है, easy है, वो select करो and सारे subjects के लिए use करो. I hope everyone understood this. सबको समझ में आ गया? Okay, so stop writing right now. Always remember to write your answers point wise में. ठीक है? तो सबसे पहला point आएगा, कोई लिखेगा नहीं. I will give you time to write. First listen. Answer में first point is applicable law and applicable section. Applicable law कौन सा है यहाँ पे? Companies Act 2013. An applicable section. Everyone understood this? यही moderator को पढ़ के समझ में आ गया, ये बच्चे ने पढ़ाई किया है. Everyone understood, and first impression is always a last impression. Everyone understood this? After that, next point. Guys, please यहाँ पे focus करो, ध्यान दो. Second one is provisions. Provisions में हमें क्या लिखना होता है? जो law में दिया है वही same आपको लिखना है, learn नहीं करना है. लेकिन कौन सा provision? पूरा private company explain करोगे? जितना आपके क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है उतना ही एक्सप्लेन करोगे. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है अबाउट इसॉप एंड उन्होंने इशू किया है डिबेंचर्स. इसॉप 300 लोगों को, डिबेंचर्स 500 लोगों को. क्वेश्चन क्या है कि उसका जो कंपनी सेक्रेटरी है वो कहता है कि कंपनी ने जो काम किया वो क्या है? इनवैलिड है एज पर कंपनीज एक्ट 2013. सो ओवर हियर applicable provision will be, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ ध्यान दो. as per section 2 clause 68 of Companies Act 2013, a private company can have members not exceeding 200. ठीक है? For counting 200, following rules shall apply. ठीक है? What is the first rule in this? Employees and ex-employees shall be excluded. क्या मैं यहाँ पे joint owners का लिखूं? जरूरत है? पक्का? When you said following rules, don't you think सारे rules लिखने पड़ेंगे? तो second rule क्या है? Joint owners are counted as one. Clear हो गया सबको? Understood? And इसमें ये पार्ट बहुत ज़्यादा important है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे? अंडरलाइन, हाईलाइट करेंगे. समझा सबको? क्लियर विद दिस? कि जिसको भी जोक्स वोक्स मारना है वो सब बाहर जाके मार के आओ. ठीक है? After that, they have also asked you about the debenture. Further, मुझे एक बात बताओ, डिबेंचर्स 500 लोगों को इशू कर रहा है तो वैलिड है कि इनवैलिड है? रेस्ट्रिक्शन तो 200 पे है. रेस्ट्रिक्शन इज एज ऑन मेंबर्स एंड नॉट क्रिएटर्स. जो डिबेंचर सब्सक्राइब करेंगे वो कौन होंगे? क्रिएटर्स होंगे. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? Further, a private company
can issue debentures to any number of persons. क्यों जस्टिफाई करना पड़ेगा? as restriction is only on number of members. Everyone understood this? दोनों points covered हो गए. Now once your provision is done, the next third point will be arguments. अभी क्या करना है देखो, ये जो प्रोविजन है इसे अपने क्वेश्चन में अप्लाई करो एंड फिर लिखो. इन आर्ग्यूमेंट्स आई विल नॉट राइट एंटायर क्वेश्चन बिकॉज एग्जामिनर के पास या मॉडरेटर के पास क्वेश्चन पेपर होता है, तो मुझे वापस क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है. आई विल बी ओनली एक्सप्लेनिंग दैट पार्ट विच इज रेलेवेंट. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. समझ आ गया? जैसे जेनजेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, पास्ट टेंस में लिखेंगे हम, हैड इशूड ESOP to 300 है ना, 300 एम्प्लॉइज. ठीक है. द सेड एक्ट वैलिड है कि इनवैलिड है? द सेड एक्ट इज वैलिड एज पर कंपनीज एक्ट 2013 as again you have to write the rule, employees and ex-employees are excluded in counting 200. Everyone understood? दूसरा क्वेश्चन डिबेंचर्स का है. Also company issued debentures थ्रू, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट के बदले पब्लिक ऑफर होता तो क्या होता? वैलिड होता कि इनवैलिड होता? दैट इज इनवैलिड बिकॉज वो शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो, प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक ऑफर नहीं देगा. याद रखोगे? समझा सबको? सो ऑल्सो कंपनी इशूड डिबेंचर्स थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट टू 500 है ना, 500 persons. The said act is valid as restriction is on number of members and not creditors. Everyone understood this? समझ आ गया? ये है आपका आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट्स के बाद लास्ट पॉइंट क्या आएगा? कंक्लूजन या एनालिसिस लिखेंगे. कभी भी जजमेंट नहीं लिखेंगे बिकॉज वी आर नॉट जज. ठीक है. अभी आपका जो कंक्लूजन है, इधर ध्यान दो 2 मिनट. कंक्लूजन है, इट शुड रिफ्लेक्ट योर क्वेश्चन. आपका फाइनल क्वेश्चन क्या है? स्टेट वेदर कंटेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज वैलिड और नॉट. अगर ये क्वेश्चन है तो 1 लाइन आंसर आएगा आपका कंक्लूजन. कभी कभी देखो, मॉडरेटर के बारे में सोचो. मॉडरेटर को एक दिन में 500,000 पेपर्स चेक करने होते हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. एंड अगर आपने पहले का इनिशियल पार्ट एकदम परफेक्ट लिखा है, चांसेस आर हाई वो बाकी सब ऊपर से चेक करेगा. लैंग्वेज आपका डिसरिगार्ड हो सकता है. एंड लास्ट में क्या चेक करेगा? कंक्लूजन. एंड आपको उसमें फुल मार्क्स देगा. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. ऐसा ही होता है. समझ में आ गया? अंडरस्टूड. इसीलिए सब कहते हैं कि पहले कैसे आंसर्स लिखो जो आपको 100% आते हैं. बेस्ट आंसर्स लिखो आपके, ताकि क्या होगा, उसके माइंड सेट में एक आपका इमेज बन गया है, ये बहुत होशियार बच्चा है, तो आपके पास होने के चांसेस ब्राइट है. जैसे अभी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ने जून अटेम्प्ट दिया होगा, दिया किसी ने, तो उसमें आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे एग्जैक्ट 200 पे पास हुए या कुछ बच्चे एग्जैक्ट 400 पे पास हुए.
2 ग्रुप्स वाले 400, 1 ग्रुप वाले 200, तो एग्जैक्ट 200 कैसे आता है पता है? नसीब से आता है। मॉडरेटर अपने पॉकेट से 1-2 मार्क देता है। क्यों? वो बच्चा सब में पास है। अग्रीगेट इज अ इशू। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। समझ रहे हो? एंड बेस्ट पार्ट ऑफ गिविंग बोथ द ग्रुप्स इज सेट ऑफ होता है। एक ग्रुप में ज्यादा है, दूसरे ग्रुप में थोड़ा सा कम है, तो वो मार्क्स शिफ्ट होता है। जैसे एक ग्रुप में 210 है, मैं ओल्ड सिलेबस की बात कर रही हूँ, दूसरे ग्रुप में 198 है, 210 का 208 होगा एंड यहाँ पे 200 हो जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। समझ आ गया? क्लियर है? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मॉडरेटर साइकोलॉजी एंड नॉट टू डू डोंकी स्टडी एट दिस स्टेज। आपको इस स्टेज पे डोंकी स्टडी नहीं करना है, तो फेल ही होगे, अटेम्प्ट्स देते रहोगे। आपको कैसा स्टडी करना है? प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्टडी करना है। इम्पॉर्टेंट क्या है, आंसर कैसे लिखना है, इस पे अगर फोकस करोगे ना तो आपका पेपर बेस्ट होगा। एंड दिस इज वेयर स्टूडेंट्स लैक। दे डोंट फोकस ऑन राइटिंग। वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं एंड बोलते हैं मैंने बहुत पढ़ाई किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। कैसे होगा? लिखा ही नहीं है। 8 महीने की मेहनत वो 3 घंटे में दिखानी होती है आपको। डू यू थिंक इट्स वेरी इजी? नहीं, बिकॉज तभी एग्जाम प्रेशर होता है एंड कभी कभी हमें जो आता है वो भी भूल सकता है वहां पे। क्यों? लिखना ही नहीं आता है हमें। तो ऐसा स्टूडेंट जिसने ईटी दिया है, बीकॉम एग्जाम तो हमें पता है कितने ग्रेड होता है, बहुत लिख के आता है हम उधर। ओके, वैसे ये एग्जाम्स नहीं होते, बिकॉज यहाँ पे क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो ये सारे टेक्निक्स को समझ लो एंड आस्क as many doubts as possible to all the professors. Concepts तो आप पढ़ लोगे लेकिन टेक्निक्स सब जगह से नहीं मिलती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। समझ रहे हो? ओके, तो डाउट्स कभी आएंगे? जब हम क्लास में ध्यान देंगे, जब हम घर पे पढ़ाई करके आएंगे। एंड अगर हमने राइटिंग प्रैक्टिस कभी की नहीं है तो डाउट आएंगे कभी भी? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। करोगे ना? पक्का? याद रखो तुम लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो विथ मेनी डिस्ट्रैक्शंस। क्लियर विद दिस? ओके, सो कंक्लूजन मैंने क्या बोला, क्या करना है? इट शुड रिफ्लेक्ट योर क्वेश्चन। व्हाट इज अवर क्वेश्चन? टेल मी। Hence, the contention of company secretary, valid है कि invalid है? Is invalid as per provisions of Companies Act 2013। क्लियर हो गया सबको? अंडरस्टूड एवरीवन हाउ टू राइट आंसर? पक्का? सेकंड। Please write this.
हम्म मतलब 1 मिनट। हाँ, क्यों नहीं दे सकते ESOP? ESOP तो सबको दे सकते हैं। दे आर नॉट काउंटेड फॉर द 200 काउंटिंग पर्पस। ESOP दे सकते हैं। यस। हाँ। Yes, you have to write the head point. Applicable law, applicable section, then start writing. Provision, yes. Yes. सिर्फ केस स्टडीज के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए नहीं। हम लोग देखेंगे हाउ टू राइट डायरेक्ट क्वेश्चंस एज वेल। दिस इज फॉर्मेट फॉर केस स्टडीज। ओके। पब्लिक प्लेसमेंट नहीं होता, पब्लिक ऑफर होता है, इनवैलिड है। हम्म। यस। यस। नहीं, वो मोस्टली सेक्शन 8 कंपनीज होता है। तो सेक्शन 8 कंपनी में तो कुछ नहीं मिलता है। इट इज ओनली फॉर चैरिटी यू आर डूइंग इट। एंड अभी से अंडरलाइन करने का आदत डालो, हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ताकि मॉडरेटर की नज़र उसी पे जाए। एंड अगर इंग्लिश इधर उधर है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो हाईलाइट होके ना आए हमारे आंसर्स में। लिखा तूने आंसर? लिखा? लिखो। कंपल्सरी, हाँ, सबको लिखना है। PDF आई एम सेंडिंग। यस, ये वाला सेम दिखाई दे रहा है। हाँ। फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। चिट चैट लिखो जल्दी। फर्स्ट पैराग्राफ इज डन।
सी बहुत हाइफन टू इंग्लिश आपको यूज नहीं करना है पेपर में. ये जैसे लिखा है, हमने क्या कुछ भी लर्न किया? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? हाइफन टू. हमने कुछ भी लर्न किया था इसमें से? We just understood the concept, right? This is how you have to write paper. This is the last one. बाकी है. Said act, ये मैंने नहीं लिखा था उसमें. Yes, they'll always get, because ESOP are always at par without any discrimination. Completed? और कोई लेक्चर में कुछ लिखते नहीं हो? कुछ नहीं लिखते? बाकी किसी में कुछ नहीं लिखते हो? घर पे जाके लिखते हो? Done? How many of you are writing? Please write fast. It's almost more than 10 minutes you are writing. आपको पता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने का कितना टाइम मिलता है? 7 मिनट मिलता है. पूरे 7 मिनट्स ओनली. ऑलरेडी तुम लोग 4 मिनट आगे हो. वो भी सिर्फ कॉपी करना है, अपना दिमाग भी नहीं चलाना था. Is it done? So in private company we have learned following. First of all, the test of private company lies in its articles with 1 prohibition and 2 restrictions. And we have learned rule of counting 200. Everyone will remember now.
So we know that private company cannot go for public offer. It cannot transfer shares without any restrictions, and number of members cannot exceed 200. कोई डाउट्स है यहाँ तक? समझा है? ओके, ओपन योर बुक्स, लेट्स डू मार्किंग. यहाँ तक जितना किया है उतना मार्किंग कर लेते हैं. स्टार्ट करें. Company is derived from the word, please mark that. I will not wait, please cope up. Citizenship, I told you. Why India, why company cannot be citizen? Because it is an artificial person. सेक्शन नंबर 3, सबसेक्शन 1 मैंने आपको बताया था. 7 और मोर, 2 और मोर, 1 person or more. It can be formed as limited by shares, guarantee and unlimited. Second subsection. On basis of incorporation, 3 types of companies are there. Chartered दिया नहीं है, statutory and registered. ये पूरा पढ़ना है. On the basis of liability, we have unlimited liability, limited by guarantee and limited by shares. Other forms of company फिलहाल तो ignore कर दो. Directly come to private company. यहाँ से लेके यहाँ तक एज अ होमवर्क पढ़ना है आपको. पूरा पैराग्राफ दिखाई दिया? After that, very important line. Private company can issue debentures to any number of members, but public cannot be invited to subscribe debenture. This means private placement of debentures allowed, public offer of debentures not allowed. Clear हो गया सबको? Okay. When articles of private company do not include restrictions and prohibitions which makes it private company, then it shall no longer be a private company. That's why I told you the test of private company lies in its articles. Everyone understood this? Clear hai? Okay. Now come to characteristics of private company. प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स मिनिमम 2 चाहिए, एवरीवन नोस. मैक्सिमम 200. सिंपल है ये. मेंबर्स का लायबिलिटी क्या होगा? लिमिटेड होगा. कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन. दिस मीन्स मेंबर्स में कम एंड गो. इट डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी. कंपनी इज फॉर्म्ड बाय द लॉ एंड इट विल बी वाउंड अप बाय द लॉ. Everyone knows what is meaning of index of members. आपके बुक में इंडेक्स होता है. Why is it useful? पेज नंबर फाइंड आउट करने के लिए. वैसे थिंक अबाउट द कंपनीज हु हैव फिजिकल रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. रजिस्टर ऑफ मेंबर्स समझते हो क्या होता है? शेयर होल्डर्स का नाम लिस्टेड होता है. सो अगर आपके 10,000 शेयर होल्डर है एंड किसी एक का डिटेल फाइंड आउट करना है तो इंडेक्स है तो बेटर होगा. Everyone understood? That is a index. लेकिन index of member is applicable where more than 200 members are there. कहाँ पे अप्लाई करता है? More than 200 members. लेकिन private company का गाड़ी किधर रुक जाता है? 200. तो is index applicable to us? No. Clear हो गया सबको? Understood? Please वहाँ पे mention करके रखो. Applicable only where more than 200 members are there. तो क्या ये हर पब्लिक कंपनी को अप्लाई करेगा? Listen to my question properly and then answer. क्या ये हर एक पब्लिक कंपनी को अप्लाई करेगा?
Because public company में less than 200 हो सकता है. Yes or no? So is it applicable to all public companies? No. Everyone understood this? As number of member is limited to private company, there is no need to maintain index of members. Whereas public company, it becomes necessary to maintain index of members. Next one, minimum directors. Are you done with your section 149? Okay, 149. कंपनीज एक्ट नहीं हुआ शुरू, डायरेक्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है. ओके, सो फॉर प्राइवेट कंपनी मिनिमम डायरेक्टर्स आर 2, मैक्सिमम 15. यू कैन इंक्रीज दिस by passing special resolution in general meeting. Everyone understood this? Clear है? GMSR मतलब क्या? जनरल मीटिंग एंड स्पेशल रेजोल्यूशन. ये सब शॉर्टकट सिर्फ क्लास तक, एग्जाम में फुल फॉर्म्स लिखना है. मॉडरेटर बेवकूफ होता है, उसको कुछ नहीं आता, सब एक्सप्लेन करना है उसको, वरना वो मार्क्स नहीं देगा. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ओके. पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट अभी नहीं है. देयर इज नो मिनिमम रिक्वायरमेंट इन एनी लॉ. आपको पता है प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस हम इशू करते हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफर के लिए. क्या हम प्राइवेट कंपनी में पब्लिक ऑफर देते हैं? नो. सो विल प्रोस्पेक्टस बी एप्लीकेबल टू अस? नो. So in case of private company, public is not invited to subscribe shares, hence no need of prospectus. Even minimum subscription किधर अप्लाई करता है? पब्लिक ऑफर के लिए. So even this is not applicable to private company. Since private company does not need prospectus, which in turn makes minimum subscription inapplicable. Now how to write the name of a private company? We have to add a suffix called as private limited after the name of company. समझा सबको? Clear? Commencement of business हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम incorporation पे पढ़ेंगे. So let's start with the next one, incorporation. Incorporation का मतलब पता है क्या होता है? कंपनी को बनाना या कंपनी को रजिस्टर करना. पेजेस मत पलटो, यहाँ पे ध्यान दो, बाद में मार्किंग करवाऊंगी. कैन यू स्टार्ट विद द इनकॉर्पोरेशन? 2 मिनट मेंटल ब्रेक चाहिए, जरूरी है. Only 2 minutes are, no one is going out of this class. टेम्परेचर बढ़ाना है, चालू करूं? गर्मी हो रहा है. एसी का रिमोट चाहिए था. ईटी में किसको 150 प्लस आया? 150 प्लस कितना आया? 159, 60, 59, 58, 55, 163, 152.
यहाँ पे टेम्परेचर कम करना है एंड यहाँ पे बढ़ाना है. मेरा मोबाइल चार्जिंग पे, स्टाफ रूम उधर लेके आओ. बुक्स के अलावा कुछ नहीं निकलेगा उधर से. ब्रेक हो गया. मेंटल ब्रेक डन. ओके, ऑल सेट फॉर स्टडिंग इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन पढ़ने के बाद हमारा फायदा क्या है? पास हो जाओगे. पास होने के बाद अगर पीसीएस बनोगे तो कंपनीज इनकॉर्पोरेट करोगे. तो तभी अगर बुक नॉलेज है तो प्रैक्टिकल नॉलेज लेने में आसानी होगा. हाउ मच वी गेट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी? एनी आइडिया? 20,000. आई टोल्ड यू राइट, 20,000 एज अ प्रोफेशनल फीस. अभी सिर्फ 20,000 के लिए इतना पढ़ाई कर रहे हैं. एक कंपनी इनकॉर्पोरेट है ना. जस्ट इमेजिन 10 कंपनीज इनकॉर्पोरेट कर रहे हो महीने में. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. समझ आ गया? बस बस बस, आगे आगे मत सोचो. कम बैक. Okay, let's go to the incorporation of private limited. The very first thing, pay attention now. सबसे पहले हमें कंपनी का नाम सोचना पड़ेगा. Yes or no? Can you name your company in any manner? We cannot name our company in any manner. We have to comply with certain rules of that. Okay, please sit straight. Pay attention. ऐसे बैठो. हम गार्डन में नहीं बैठे हैं. हम कहाँ बैठे हैं? क्लासरूम में बैठे हैं. So first of all, promoters have to apply for reservation of name. Okay, before that tell me, do you know what is meaning of Spice Plus? Spice Plus जो सर्विसेज देता है सब आता है. आता है कि नहीं आता है? Have you heard of ease of doing business? It is our initiative of government called as ease of doing business. Under ease of doing business, it has lessened the formalities for doing business. That means, at least for a company, they have come up with the integrated form called as a Spice Plus. Now, why do I call it as an integrated form? Because Spice Plus provides with 10 services. कितना देता है? 10 services, and your Spice Plus is divided into two parts. Part A and Part B. Part A पहला सर्विस प्रोवाइड करता है जिसका नाम है रिजर्वेशन ऑफ नेम. ठीक है, नाम रिजर्व करना है तो पार्ट ए में अप्लाई करेंगे. सेकेंड से पार्ट बी शुरू होता है. सो कंपनी कैन टेक डिन. डिन सबको पता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. इट कैन ऑल्सो ऑब्टेन पैन, टैन, सैम और कुछ, ESIC, EPFO, GST, बैंक अकाउंट, प्रोफेशन टैक्स, and the last one is shops and establishment. ठीक है.
तो स्पाइस प्लस में कितने सर्विसेज मिलते हैं हमें? 10 सर्विसेज मिलते हैं. आई नो बहुत सर्विसेज के हमें फुल फॉर्म्स भी नहीं पता होंगे. दैट इज ओके, वी आर गोइंग टू लर्न दैट इन पार्ट ए इटसेल्फ, जिसे हम कहेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटी. जैसे कि ESIC एक स्टेट इंश्योरेंस होता है, EPFO एक प्रोविडेंट फंड होता है, GST सबको पता है, बैंक अकाउंट ओपनिंग पता है. शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट आपको तब लगता है जब आप कमर्शियल शॉप ओपन करते हो. जैसे महाराष्ट्र में भी रिक्वायर है गुमस्ता लाइसेंस इफ यू वांट टू ओपन अ शॉप. नेक्स्ट वन इज प्रोफेशन टैक्स. जो प्रोफेशनल सर्विस देता है उसे क्या देना पड़ता है? प्रोफेशन टैक्स. सो ऑल ऑफ दिस इज अ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. मतलब कंपनी जब भी फॉर्म होता है उसके बाद 1 महीने तक वही सब फॉर्मेलिटी करता रहता है. तो गवर्नमेंट ने कंपनी का काम आसान कर दिया. कैसे? COI के साथ उसको ये सारे सर्विसेज मिल जाएंगे so that it can concentrate on business immediately. I hope all of you understood this. That's why this is an initiative under ease of doing business. Everyone understood this? ये 10 सर्विसेज हमें लर्न करना है. ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है. सबको समझा इतना? कैन वी रिपीट दैट? ट्राई करोगे लर्न करने का? ओके, सो व्हाट आर द सर्विसेज? नेम, प्रोफेशन टैक्स, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट. ठीक है, समझा? अभी आंख बंद करके ट्राई करो. अगर सबको पता है आपकी खुद की हालत क्या है, जिसने ये याद कर लिया एक बार रिपीट करके एंड देख के, दैट पर्सन इज हाईली इंटेलिजेंट. डोंट वेस्ट योर इंटेलिजेंस. यू कैन क्लियर बोथ द ग्रुप्स टुगेदर. एंड बाकी लोग जो नहीं कर पाए डज नॉट मीन आप कम इंटेलिजेंट हो, आपका फोकस कम था. No one is less intelligent over here. Everything matters is focus in your life. I hope all of you understood this. समझा सबको? लास्ट बार रिपीट कर ले. चलो. Reservation of name, DIN, PAN, ESIC, EPFO, GST, bank account, profession tax and spice is divided into how many parts? 2 parts. याद रहेगा अभी? So for incorporation of company, the very first thing they need to do is apply for reservation of name. अभी कंपनी का जो नाम है हम कुछ भी नहीं रख सकते. जैसे कि हमें रिलायंस का नाम बड़ा पसंद है तो हमने रख दिया रिलायंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड. मुकेश अंबानी जी आएंगे, केस फाइल करेंगे आप पे. क्यों? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बिकॉज दैट इज इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, उनका ब्रांड नेम है. या फिर सपोज आपने नाम रख दिया मनी लॉन्ड्रिंग प्राइवेट लिमिटेड, गवर्नमेंट आएगा. क्या चल रहा है? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. सो नेम हैज टू बी एज पर, first of all, rules called as Incorporation Rules 2014, read with Emblems and Names Act. ये रूल्स हम चैप्टर 2 में ही पढ़ने वाले हैं. ठीक है, लेकिन हम क्या याद रखेंगे? नाम किसके हिसाब से होना चाहिए? Incorporation and Emblems and Names Act. एंड हम जो भी नाम सेलेक्ट करें वो ROC के पास पहले अप्रूव करवाना है. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रिजर्वेशन ऑफ नेम. ROC अगर अप्रूव करेगा तो ही आप इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो पर्टिकुलर नेम से. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस. सबको समझा व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिजर्वेशन? ओके,
So reservation of name we are going to apply in which form? Spice plus part A. Everyone understood this? ठीक है, तो हमने नाम अप्लाई किया and this name is going to be filed with the ROCs and इसमें जो फीस है 1000 रुपया भरना है. समझा सबको? क्लियर है? ओके. उसके बाद ROC नाम चेक करेगा वैलिड है कि इनवैलिड है. तो ऑन अप्रूवल ROC जैसे ही नाम का अप्रूवल देगा, रिमेंबर नेम इज वैलिड फॉर 20 डेज. तो नाम ROC ने आपके लिए रिजर्व किया है कितने दिन के लिए? 20 डेज के लिए. दैट मीन्स यू हैव टू फाइल योर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स विद इन 20 डेज. इफ यू डोंट डू दैट द नेम विल बी लैप्स्ड एंड नेम विल गो टू समवन एल्स. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. समझ आ गया? तो ROC जैसे ही नाम अप्रूव करता है, हमें कितने दिन में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं? 20 डेज में. सबको समझा इतना? लेकिन नहीं कर पाए तो क्या होगा? लैप्स हो जाएगा. So there is a provision that we can apply for something called as extension. That possible नहीं है 20 days में फाइल करने का. So kindly give us extension. Now listen to this carefully. अपना 100% दिमाग इधर लगाना. Extension में देखो, suppose आपका अप्रूवल मिला on 1st of September 23. तो आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स कब तक फाइल करना है? 20th of September 23 तक. लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा है बिकॉज आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रमोटर्स बाहर है, सपोज छुट्टियां मनाने गए, या फिर उनके घर पे गणपति आता है, या फिर जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन है, कुछ भी रीजन है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट साइन नहीं हो पा रहा है. सो नाउ यू नो दैट इट इज not able to file within 20 days. So first rule says that before expiry of 20 days you have to apply for extension. तो एक्सटेंशन लेना है तो 20 सितंबर से पहले अप्लाई करना है. ओके. अभी एक्सटेंशन कब तक लेना है? एक्सटेंशन ऑफ 40 days from date of approval. अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे 40 days from date of approval है, मतलब it is from technically you are taking 20 days extension. I hope all of you understood this. अभी इतना क्यों घुमा के देते हैं? ये लॉ लैंग्वेज है, ये ऐसी ही है. अगर ये इतनी आसान होती तो प्रोफेशनल्स पैसा कमा नहीं पाते. I hope all of you understood this. समझा सबको? So before expiry of 20 days, take extension of 40 days. Now second one. अभी 40 days तक extension लिया, मतलब what does the date tell me? Somewhere around, हम बहुत ज़्यादा technical नहीं जा रहे, 10th October तक लिया, मतलब आपको incorporation documents part B फाइल करना है 10 अक्टूबर तक. Suppose उसमें भी नहीं कर पा रहे हो. Okay? So now this time you are taking extension before expiry of 40 days. मतलब 10 अक्टूबर से पहले अप्लाई कर रहे हो. You are applying for extension of 60 days. अभी समझ आ गया ये पॉइंट? From the date of approval. क्लियर हो गया? मतलब आपका एक्सटेंशन कब तक गया? 30 अक्टूबर तक गया. क्लियर हो गया सबको? अभी थर्ड सिनारियो. ऑन दिस डेट इटसेल्फ 20th सितंबर को ही आपको रियलाइज हो रहा है हमारे प्रमोटर्स जो है बहुत आलसी है, घूमने जाने वाला है. तो हम प्रमोटर्स को कहते हैं काम करते हैं 40 दिन का नहीं, डायरेक्टली 60 दिन का एक्सटेंशन ले लेते हैं. क्लियर? सो ओवर हियर इट विल बी बिफोर एक्सपायरी ऑफ 20th डे. सो आप कभी अप्लाई कर रहे हो? 20 सितंबर से पहले आप अप्लाई कर रहे हो. नॉट अप्लाइंग फॉर एक्सटेंशन ऑफ 40 डे बट आप डायरेक्टली अप्लाइंग फॉर 60 days फ्रॉम
date of approval. Everyone understood this? Third point, पक्का? थर्ड पॉइंट में प्रॉब्लम है, वापस बताओ या समझा? समझा? ओके. अभी इसका जो फीस है, यस, एनी डे, बट इट कैनॉट बी आफ्टर 20 डे. ओके, यहाँ पे आपको, सॉरी, यहाँ पे आपको फीस भरना है 1000. यहाँ पे आपको फीस भरना है 2000 एंड यहाँ पे आपको फीस भरना है 3000. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. सबको समझा? पूरा पॉइंट वापस बताओ. एक बार हमारा नेम अप्रूव हो जाता है, कितने दिन के लिए वैलिड होता है? 20 दिन का वैलिडिटी. मतलब पार्ट बी हमें फाइल करना है विद इन 20 डेज. नहीं कर पाए तो 20 दिन खत्म होने से पहले अप्लाई फॉर एक्सटेंशन. सो बिफोर एक्सपायरी ऑफ 20 डेज फॉर 40 डेज. क्लियर है? अभी 40 डेज खत्म होने तक आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है. सो बिफोर एक्सपायरी ऑफ 40 डेज अप्लाई फॉर 60 डेज. Understood? And before expiry of 20 days only you feel that it is not possible in next 20 days, so instead of 40 days directly apply for 60 days. Simple है? समझ आ गया सबको? मुझे पता है ये इतना easy नहीं है, लेकिन एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा. Understood this much? and इसमें फीस कितना है? 1000. and for first extension 1000, 2000 and 3000. क्लियर हो गया सबको? Okay, so this was a first point in incorporation, reservation of name. अभी क्या है? We have received approval from ROC, correct? So we have to start making which documents? Incorporation documents. So the next step is preparation of incorporation documents. अभी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? The 2 charters, that is memorandum of association. Many a times we feel that we are very good at spellings. When we actually write it, we make blunders. ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ था. तो कैसे कवर होता है सब? राइटिंग प्रैक्टिस. बिकॉज एट दिस लेवल हम स्पेलिंग मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते. सबको समझ आ गया? क्लियर है? ओके. सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. दूसरा क्या है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम जो है इसका फॉर्म नंबर है INC 33. आर्टिकल्स है INC 34. Okay, after that declaration from subscribers, INC 9. Declaration from प्रोफेशनल. ये आपने ET में पढ़ा था? सब पढ़ा था. INC 8 याद है? कौन से प्रोफेशनल डिक्लेरेशन देते हैं? डिक्लेरेशन देना मतलब क्या पता है? कौन से प्रोफेशनल कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए प्रमोटर का साइन चाहिए एंड प्रोफेशनल का साइन चाहिए. प्रॉब्लम इज कंपनी सेक्रेटरी के लिए एक्सक्लूसिविटी नहीं है. सो कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड बाय अ PCS, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड एडवोकेट. समझा सबको? अंडरस्टूड? एक्सक्लूसिविटी दिया नहीं है. तो कौन है प्रोफेशनल्स इधर? PCS, CA, CMA एंड एडवोकेट. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिक्लेरेशन. पता है क्यों? वाई डिक्लेरेशन इज सो इम्पॉर्टेंट?
because if you don't comply with any rule, if you give false information, if you omit any material information, अभी जो भी मैंने महंगा वाला इंग्लिश बोला समझा? पक्का? क्या बोला मैंने? अगर हमने कुछ भी झूठ बोला या फिर इंपॉर्टेंट मतलब मटेरियल इंफॉर्मेशन छुपाया, इन प्रोफेशनल का जो लायबिलिटी होता है, इट इज अंडर सेक्शन नंबर 447. अभी ये 447 क्या है? एज पर कंपनीज एक्ट 447 इज नथिंग बट द फ्रॉड. समझ आ गया? इसकी सजा क्या है? इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन हो सकता है 10 लाख 25 लाख तक. इतने से काम नहीं होगा. आईसीएसआई का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है, तो आईसीएसआई भी हमें पनिश करेगा, रेप्रिमांड कर सकता है या फिर लाइसेंस छीन सकता है, सस्पेंड कर सकता है, ऐसे बहुत कुछ होता है. इसलिए 20,000 जो हम ले रहे हैं उस पर काम करना पड़ेगा. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. क्लियर हो गया? समझा सबको? पक्का? ओके. सो डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल इन विच फॉर्म? INC 8. एंड इसमें झूठ बोला या कुछ भी छुपाया तो फ्रॉड लायबिलिटी अंडर विच सेक्शन? 447. याद रखना 447 आया मतलब हमेशा फ्रॉड याद रखो. समझा सबको? ऐसा लग रहा है मैम बहुत डरा रहे हो, बहुत ज्यादा डरा रहे हो. बाकी ऐसा कोई डराता नहीं है हम लोग को. ऐसा लग रहा है सब लोग डराते हैं. एवरीवन डराते हैं. Okay, after that next one, directors documents. डायरेक्टर्स डॉक्यूमेंट्स चाहिए दो. एक तो है DIR-2. DIR-2 क्या होता है? डायरेक्टर का कंसेंट. दूसरा होता है DIR-8. DIR-8 is nothing but declaration of नॉन डिस्क्वालिफिकेशन. क्या क्या बात क्या कर रहे हो इतना ज्यादा? क्या डिस्कस कर रहे हो? ये सब जो बोल रहे हैं वो सच में होता है कि नहीं होता है? ये फिक्टिशियस लग रहा है सब कुछ. ये फिक्टिशियस नहीं है, ऐसा होता है. जैसे आप प्रैक्टिस में जाओगे ना, पहला समन आएगा. अगर समन समझते हो, कोर्ट का बुलावा, फिर बड़ा मजा आएगा. एंड दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर प्रैक्टिस. ऐसा आता रहता है. समझा सबको? या तो कंपनी गलत करता है या तो हम गलत करते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. समझ आ गया? सो ये सब फिक्टिशियस कुछ नहीं है. चलो ये सारे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स हमें लर्न करने हैं. पे अटेंशन ओवर हियर. अभी तक कितने पढ़े हैं बताओ? पहला कौन सा है? पहला डॉक्यूमेंट कौन सा है? फॉर्म नंबर, आर्टिकल्स, सब्सक्राइबर्स का डिक्लेरेशन, प्रोफेशनल का, झूठ बोलोगे या फिर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपाओगे तो कौन से 4 प्रोफेशनल कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है? डायरेक्टर्स के कितने डॉक्यूमेंट्स हैं? एक है डायरेक्टर का कंसेंट DIR-2 एंड नॉन डिस्क्वालिफिकेशन. ये नॉन डिस्क्वालिफिकेशन पता है क्या होता है? कैन विजय माल्या बिकम डायरेक्टर ऑफ कंपनी? बिकॉज ही इज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर. यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर? जो 100 करोड़ से ज्यादा का स्कैम किया है एंड कंट्री से भाग गया है,
उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ही इज डिस्क्वालिफाइड. ये किधर दिया है? सेक्शन 164 में. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? समझा? So DIR 2 and DIR 8. And also every person needs to have a DIN. Yes or no? So तीसरा क्या हमें डायरेक्टर से चाहिए? DIN चाहिए. Any doubts in director's documents? Now next document is last one, registered office documents. Please pay attention over here for registered office documents. Registered office documents can be either rented, मतलब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस रेंट पे हो सकता है या फिर ओन्ड हो सकता है. अगर ओन्ड है तो दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए. पहला, प्रूफ ऑफ ओनरशिप चाहिए. ओनरशिप में क्या सबमिट करोगे? ओनरशिप का प्रूफ क्या क्या होता है? पेपर्स होता है आपका, अग्रीमेंट होता है. दूसरा, यूटिलिटी बिल देना है. यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूटिलिटी बिल? इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट एक्सेट्रा. लेकिन ये लेटेस्ट चाहिए. लेटेस्ट मतलब नॉट ओल्डर देन हाउ मेनी मंथ्स? 2 months. पहले 6 months था, अभी कितना है? 2 months. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? Along with that, क्या हुआ? बैंक में क्या 6 महीने तक का लेते हैं? हाँ, यहाँ पे कितना लेंगे? 2 months. ओके, रेंटेड के केस में हमें किसका प्रूफ देना है? रेंट अग्रीमेंट देना है. रेंट रिसीट भी चलेगा. Along with that, you will have to submit utility bill, same, not older than. एंड यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, NOC. NOC क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. नाउ दिस विल बी नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बिकॉज ये प्रॉपर्टी कंपनी का नहीं है. सो इन केस ऑफ रेंटेड 3 डॉक्यूमेंट्स, इन केस ऑफ ओनरशिप 2 डॉक्यूमेंट्स. याद रहेगा सबको? याद रखना ही पड़ेगा. यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. नाउ पे अटेंशन प्रॉपरली. यहाँ पे ठीक से ध्यान दो. मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स 33-34 है. दिस कैन बी E33 एंड E34. मतलब दिस कैन बी ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जब भी होता है उसका सिग्नेचर हम DSC के साथ करते हैं. दैट्स अ डिजिटल सिग्नेचर. सबको समझा? सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.